भाभी एक बार है ना, आप ये गोदरेज की बिला और देख लीजिए। गोदरेज की बिला में 1090 स्कीम चल रही है। अभी सिर्फ 10% देना है, 90% आपको पोजीशन पे देना है। वो आप एक बार CTC selling something 1090 scheme. जी, राइस वाला भी देख लीजिए आप, दोनों अच्छे हैं। मतलब We राइस are वाले से now ज्यादा getting live. गोदरेज इज We are just putting it live now. So good morning, everybody. Good morning. So now today's webinar series 7 under the banner of Sigma Franchise Summit, and the topic today is technological entrepreneurships, trends and teaching. So it's a wonderful topic, and a lot of people have requested us to talk about more on technology thing, because now there is a, in the market there is a buzzword technology, and a lot of companies have already got a lot of fundings. So now people are more focused about technology thing because of this geo thing. I mean, in the pandemic area, बहुत पैसा बनाया इन लोगों ने, and now he has reached to 6th number, which is a big thing for India. So let us start today's webinar from, we are going to discuss with all the panelists. Some questions are there, some suggestions, some tips also to the participants. And we believe that by understanding of this technology trends and teaching, we'll be able to, make some money, extra money, and also we can look forward for new business. So I would like to introduce today our panelists. Start from Gaurav sir. Gaurav Kapoor, he's senior head and senior head industry partnerships, CSR engagement, media advocacy. Gaurav sir is CA by profession, and he's leading NSDC nowadays. He's responsible for the business development, operation, financing, and advocacy to set up demand-driven greenfield skill development institutes and upgrade brownfield one through CSR and other financing models. He also drives engagement with industry to invest in national skill development programs. Thank you, Gaurav sir, for coming over. Now, our second panelist is SK Gautam sir. He is CEO in Udyam. Mr. Gautam is seasonal, enthusiastic, and dedicated professional in agri-business industry, who is serving this agri-business from last 29 years with various roles and responsibilities, managing from fluff to platter with topmost agri-business corporate house in India and MNCs. He has worked with the Margappa Group, National Bulk Handling Corporation, Ranbaxy, Aditya Birla Group, Mahindra and Mahindra, and India Potash Limited. Thank you, Gautam sir, for coming over. And our next panelist is Dr. Sumit Susilan. Dr. Sumit, congratulations for one news which we have, that you have been now chairman for ASSOCHAM for Jharkhand region. So Thank you. Many congratulations. We'll look forward for working with you. Sure, thanks. And Dr. Sumit is a 7-time national and international award winner. He's a veteran aviator with more than 15 years of experience in industry. He's also an aviator author, written 3 books, which is widely used worldwide by aviation management students. He's heading training for drones in India and working with BIS, Government of India. Thank you, sir, for coming over. Thank Our you. next panelist is Vivek Raman. He's co-founder of Regrob. Vivek is a very dynamic and young entrepreneur and co-founder at Regrob.com. He is IT enthusiastic and loves travels with a taste of adventure. With his customized Jeep, I've already talked about this Jeep thing. He is passionate cyclist and excellent leader, running 56 successful franchise of Regrob.com in India. In fact, 5 more franchise he has added in last 1 month. So congratulations, sir, for coming over. Next, our panelist is Ashish Kaushik ji. He is a a fantastic person. He is mentoring few organizations, and he is a franchise expert. And nowadays, he's a very key member for many of the leading organizations nowadays.
and he's also co-founder with Regrop. Ashish Kaushik ji is a passionate entrepreneur at Regrop. He is a growth hacker, business scaling professional, and keynote speaker, as I already said. He is an IMI alumni with Ahmedabad. He is half marathon triathlete and have completed several Himalayan treks. He lives with parents, two lovely children. Thank you, Ashish ji, for coming over. So let's start this session with few questions, and also we are looking forward for discussing some practical exposure of these technology trends. So let's take up the first sessions from first question. These days, sir, technology is a buzzword for entrepreneurs. What do we mean by technology entrepreneurship? Is a basic question comes to the mind of many entrepreneurs because टेक्नोलॉजी के आसपास ही बहुत कुछ चल रहा है और आज जो हमने देखा है पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं एक टेक्नोलॉजी जो बिजनेस चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं बाय डिफरेंट वेज दे हैव फाइंड आउट दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम एंड अदर ऑप्शंस आर आल्सो लीडिंग even the efficiency is increasing day on day of those companies which already adopted these technologies. So what we think about this technology entrepreneurship? Does this name is kind of buzzword or does it really means to the new entrepreneurs? तो गौरव सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें इसमें what does it actually means? गौरव सर. So good morning everybody. It's a pleasure to be back here again. तो आज हम लोग टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को बिजनेस के साथ कैसे जोड़ा जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे किया जाए, उस बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम इसको एक सिंपल वे से पहले देखें तो आज की डेट में हर बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करता है, पर क्या वो टेक्नोलॉजी बिजनेस है, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं. आप एग्जांपल लीजिए एक अपना लोकल किराना की दुकान का जो आपके घर के पास होगी. आज की डेट में वो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है. मोबाइल पे आप उसको ऑर्डर लिखवाते हैं, पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है. और ये चीज आज से 5-7 साल पहले तक नहीं थी. ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करने से उसका बिजनेस बढ़ा है और उसने शुरू किया है. बट अभी इसी को अगर हम कंपेयर करें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस क्या होगा. अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा एक बहुत बड़ा स्टोर है हमारे यहाँ पे वसंत विहार में, मॉडर्न बाजार करके. सब लोग वहां पे जाके सामान खरीदते थे. उसने अभी लॉकडाउन शुरू होते ही अपनी वेबसाइट को पूरा का पूरा इक्विप करके सारा स्टॉक उस पे डाल के डायरेक्ट ऑर्डर बुक करना शुरू किया वेबसाइट से और घर पे डिलीवरी करना शुरू किया. अब ये हो गई टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप. हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन अब जरूरी हो गया है. प्लेटफॉर्म, पोर्टल, एप्स, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं. बट अगर हम लोग इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के बेस पे ही आगे बढ़ा सकते हैं. लॉकडाउन में सबने देखा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने पूरा आगे बढ़ के मदद करी है और हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन शुरू हो गया है. तो ये हम डिस्टिंक्शन समझना चाह रहे थे कि हर बिजनेस टेक्नोलॉजी जरूर इस्तेमाल कर रहा है. थोड़ा हम इस पे और आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस में भी. पर टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने पूरी की पूरी अपनी दुकान ही वेबसाइट पे बना दी और वो चलने लग गई वहां से. तो ये इसका एग्जांपल हर बिजनेस में लगाया जा सकता है. और आज की डेट में कोई भी अगर हम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस देना पड़ेगा. और टेक बेस्ड अगर बिजनेस होगा तो उसके ग्रोथ के चांसेस क्विकर हैं, उसमें आपके सक्सेस के चांसेस बेटर हैं. You mean to say scalability हम ज्यादा कर पाएंगे by using this technology? बिल्कुल. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक आदमी जो लोकल दुकान चलाता था उसने जैसे ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, अब उसकी सप्लाई की एक तो दायरा बढ़ गया. अब उसको वो 10 किलोमीटर के अंदर सप्लाई नहीं देनी है, वो अपनी गाड़ी रख के कहीं भी सप्लाई दे सकता है. बहुत दूर दूर से लोग उसके साथ जुड़ने लग गए और क्योंकि लॉकडाउन था, जो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे उन्होंने भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया. तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसने अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और ग्रोथ की तरफ लेके गया. सर इसमें एक क्वेश्चन ये सवाल आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी जैसे ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, तो टेक्नोलॉजी किस चीज में आदमी अडॉप्ट करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम किराना की आपने बात की, मॉडर्न, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बिकॉज सब लोग देख पा रहे हैं इसको. ये टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस में होती है या कई लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं बट उनका रियलाइजेशन नहीं होता, उनको कुछ ऐसा, व्हाट डज इट एग्जैक्टली? देखिए टेक्नोलॉजी रैक मैंने कहा हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता नहीं है. आज की डेट में हमारे साथ जो अटेंडी यहाँ जुड़े हैं वो सब टेक्नोलॉजी के बेस पे जुड़े हैं.
वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से हमें घबराना नहीं है, टेक्नोलॉजी को हमें बेटर अपनी चीजों में इंटीग्रेट करना है। टेक्नोलॉजी हमेशा प्रोसेस वाइज आती है। मैंने जैसे अभी आपने बताया जितेंद्र सबको कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी थी। जब मैंने 1995-96 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू करी थी तो सब मैनुअल बुक राइटिंग होती थी। हम लोग हाथ से किताबें लिखते थे, डेबिट क्रेडिट खाता बनता था, फिर ट्रायल बैलेंस बनता था, फिर बैलेंस शीट बनती थी। बराबर। जब तक आई थिंक 95, 96, 97 में ऑटोमेशन उसमें शुरू हुआ, टैली, ईएक्स, इस तरह के बहुत सारे पैकेज आ गए। आज की डेट में आप देखिए कि कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर ही रहा है, इनवॉइसिंग भी उसी से कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस इंटीग्रेशन हुआ फाइनेंसिंग में, अकाउंटिंग में। फिर उसके बाद आ जाइए आप कस्टमर रिलेशनशिप में, सीआरएम के आजकल पैकेजेस हैं, एचआर में, एचआर का अपना अलग पैकेज है। तो प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं हम, बट ये फिर भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, ताकि हम लोग आराम से काम कर सकें। टेक बेस्ड बिजनेस होगा कि जैसे आपने कहा पेटीएम, या आपने बनाई वेबसाइट, या आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे ये वेबिनार एक एग्जांपल है, अगर हम मान ले कि ये कमर्शियल वेबिनार है तो ये टेक्नोलॉजी के बेस पे, ये टेक बेस्ड बिजनेस है। तो अभी जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो दो चीजें हैं। एक तो है कि हम टेक्नोलॉजी को प्रोसेस बेस्ड कर लें, या हम एक टेक बेस्ड बिजनेस की बात करें। सो देयर आर टू मीन्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी थिंग कि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्रोसेस जो हम काम कर रहे हैं, अनदर इज जो हमारा टेक बेस्ड बिजनेस है। तो वंडरफुल। गौतम सर, यस गौतम सर, दिस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, आप रूरल एरिया से बहुत बिलोंग करते हैं, आपने एग्री बिजनेसेस में काफी काम किया हुआ है, तो वेयर यू फाइंड कि आज वो नीड ऑफ आर आ चुका है कि हम जो देखते हैं एग्रीकल्चर में जिस तरह से लोग बिजनेसेस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी मेन सप्लायर्स, बट जो बॉटम लेवल पे डिस्ट्रिक्ट्स में काफी सारे बिजनेसेस होते हैं एग्रीकल्चर को लेके, वेयर यू फाइंड दीज टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप इज हैपनिंग और इट इज अ नीड ऑफ आर कि वो करनी चाहिए? देखिए, जैसा अभी आपने बहुत क्लियरली डिफाइन किया गौरव सर ने भी कि, और आपने भी उसको क्लियरिटी दे दी। एक प्रोसेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस कर रहा है हमारा बिजनेस। तो ये दोनों एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्री एंड फूड सेगमेंट में अभी प्योर टेक्नोलॉजी 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस कम है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, लॉजिस्टिक्स में है, जो क्योंकि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, काफ़ी बड़ा सेटअप है, उसमें कई कई छोटे सेगमेंट हैं। तो यदि कोई एंटरप्रेन्योर जो यदि लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में है या डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में, उस वो ही कैन बी ए टेक्नोलॉजी बेस, वो हो सकता है, वो टेक्निकल, वो अपना बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस कर सकता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन और सिस्टम है, और जो प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट, तो ये सब प्रोसेस बेस्ड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी 100% टेक्नोलॉजिकल कि ऐप बना ले तो वो हार्वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें प्रोसेस बेस्ड ही टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। जैसे लैंड लेवलिंग के लिए पहले होता था ट्रैक्टर से लैंड लेवलिंग करते थे, बहुत टाइम वेस्ट होता, इसके बाद भी एक्यूरेसी नहीं आती थी। अब सैटेलाइट बेस्ड लैंड लेवलर्स आ गए हैं, जो कि कंपनीज एज ए रेंटल सर्विस भी देती हैं, लोग बड़े फार्मर्स खरीद के भी रखते हैं, वो सैटेलाइट से कनेक्ट करके वो अपने पूरे फील्ड को लेवल कर लेते हैं। तो ये 100% नहीं, लेकिन है प्रोसेस बेस्ड है। तो आपका ये कहना है कि टू स्टार्ट विद, आज अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर बिजनेस की अगर बात करें तो हमें प्रोसेस बेस पे ज्यादा ध्यान देना होगा सब पार्टिसिपेंट्स को, और जो चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में स्टार्ट करें। और लॉजिस्टिक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें टेक बेस्ड बिजनेस के लिए ट्राई किया जा सकता है। उसमें कर सकते हैं। राइट सर। Sumit ji, you come from a background of aviation, so can you correlate this technology entrepreneurship in your aviation industry? Right. If I'll tell you about the agriculture industry, आजकल आप देखेंगे ड्रोन का बहुत यूसेज हो रहा है फॉर फार्मिंग पर्पस के लिए। तो मेरा कल ही एक हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट से बात हो रहा था, तो नॉर्मली जब वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते थे तो एट ए टाइम वो 5 से 6 लोग को लगाते थे फार्मलैंड में। तो उस चीज को अभी अवॉइड करते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आया है, तो इट कैन बी लाइक 1 पर्सन कैन मैनेज द एंटायर अराउंड 100 एकर्स ऑफ लैंड। वो अकेला एक फार्मर काम कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी के कारण
एक तो टाइम सेव होने वाला है फ्यूचर में, और मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। मतलब द फार्मर वोंट हैव मोर एक्सपेंसेस। पहले इनका खर्चा बहुत ज्यादा होता था क्योंकि उनको लोगों को आउटसोर्स करना पड़ता था कटिंग के लिए एंड ऑल दिस थिंग। विद द टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर है, इसमें एक तो है कि जो कॉस्टिंग बहुत बचेगा इनका, बिकॉज नॉर्मली फ्यूल चार्जेस बहुत लगता है इनको। अगर पेस्टिसाइड वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के करते हैं तो उनको ट्रैक्टर में भी डीजल डालना पड़ता है। तो जो अभी नया ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये सोलार पावर में काम करने वाला है। मतलब आप ड्रोन को फार्म लैंड में रख के छोड़ दीजिए पूरा आफ्टरनून में, और शाम तक आपका ड्रोन फुल चार्ज हो जाएगा, एंड यू कैन यूज फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग एंड ऑल। इवन जैसे आपको क्रॉपिंग का टेस्ट करना है कि क्या वो फसल पक चुका है या नहीं, ये चीज भी आप ड्रोन के हेल्प से कर सकते हो आगे चल के। तो आपको पूरे 100 एकड़ में चलना नहीं पड़ेगा चेक करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है। और ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लाइक आंध्रा, तेलंगाना, केरला, ये ड्रोन सॉफ्टवेयर को एंड आईटी को ऑप्ट करना चालू कर चुके हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो एग्री के अंदर में जो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, तो जो जी अभी एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इस एक सेगमेंट की तरफ भी देख सकते हैं, आपका ये कहना है? जी हाँ, क्योंकि यूथ हमेशा शॉर्टकट्स देखते हैं, स्पेशली आज के यूथ। दे डोंट वांट टू वेट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो आजकल जो भी फार्मर्स हैं वो बहुत ही एजुकेटेड है। मैंने देखा है बहुत सारे जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर में बीटेक कर रहे हैं, उसके बाद अपना करियर प्लान कर रहे हैं। वो मट्टी में उतर के काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो एक जगह बैठे हैं और सर्वे करें कि वो कैसे कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट में। तो विद द टेक्नोलॉजी ये सब कुछ पॉसिबल है। Okay, so you have now opened a one new, area for the people who can enter into this technology entrepreneurship, whereby यस using these drones, he can look forward. यस Vivek ji, I am coming to you. Can you, correlate this technology entrepreneurship in this infrastructure? Thank you, आशीष जी से Jiten. रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फॉर दिस सेशन, लेट अस समराइज इट आफ्टर विवेक, सो दैट बिकॉज आप फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हैं एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप जो बताएंगे वो एक सबका सबमिशन होगा। विवेक जी, प्लीज गो अहेड। Yeah, thank you, Jiten, and good morning, all of you. See, सबसे important है the question which I am finding here is technology entrepreneurship. तो इसको दो पार्ट में अगर हम स्प्लिट करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक टेक्नोलॉजी है। तो जितने भी बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप है, सब में टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। जनरली हमारे दिमाग में जब भी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड, जब भी हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कोई भी आईटी बेस्ड बिजनेस होगा, आईटी बिजनेस Correct. होगा, है ना। इसके अंदर वेबसाइट बनाने का काम हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग का काम हो सकता है। बट टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली ये डिफाइन कर रहा है कि जितने भी आप बिजनेस करो उसमें टेक्नोलॉजी को अटैच कर दो। दैट इज टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं अपने कंपनी के एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के में आता हूँ, regrowth.com में। तो हम लोग ने व्हेन वी स्टार्टेड अ बिजनेस, तो हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे। हम अपने कस्टमर को फॉर एग्जांपल जैसे वी आर इनटू ब्रोकरेज बिजनेस, तो हम अपने कस्टमर को साइट पे बुलाते थे, उनको विजिट कराते थे प्रॉपर्टी। बट जब से हमने टेक्नोलॉजी यूज की है तो हमें वो साइट विजिट कराने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है, मिनिमम हो गया। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज की वीडियोस बना लेते हैं, ओरिजिनल वीडियोस बना लेते हैं, और उनको यूट्यूब के लिंक हम उनको व्हाट्सएप में भेज देते हैं। तो उससे क्या है, हमारा भी टाइम सेव होता है और हमारे कस्टमर का भी टाइम सेव होता है। So that is the beauty of using technology in entrepreneurship. करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे से डिफाइन किया विवेक जी आपने। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी वर्ड सुनते ही हर आदमी को लगता है मुझे करना तो चाहिए, लेकिन वो कैसे करना है, अपने सिस्टम्स में कैसे डालना है, ये एक राइटिंग कहीं अवेलेबल नहीं है, सो दैट मतलब वो आदमी उसको कोरिलेट कर सके। तो जैसे गौरव सर ने कहा कि प्रोसेसेस में डालो या फिर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस में चले जाओ। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके जो अपने एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें, सो दैट पार्टिसिपेंट्स कैन गेट एक्चुअल बेनिफिट कि अपन अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग वी शुड राइट एंड सी कि टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो सकती है और नहीं हो सकती है। बिकॉज नेम दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। गौरव सर से मेरी बात हो रही थी, सर बोल रहे थे कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू डिस्कस, but I hope we will be able to make out some conclusions. Ashish ji, please summarize this session with your franchise expertise. Ashish ji, please, can you unmute? Yeah. Yeah, Ashish ji, please go ahead. जी, just a moment. Yeah, thanks Jitendra. Thanks all panelists for their insights on technology. So अभी जो समय है, जिस 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं,
टेक्नोलॉजी इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर कि मेरा बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करता है या नहीं करता है. मैं अपना बिजनेस बिना टेक्नोलॉजी के भी चला लूंगा. तो टेक्नोलॉजी इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, इट इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस. तो बिल गेट्स ने बहुत समय पहले एक, वी ऑल नो बिल गेट्स, ही वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो उन्होंने एक बात की थी, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट इट विल श्योरली डाई. तो that thing has come. Internet is the most common technology that we all are using. So अगर टेक्नोलॉजी की बात करें कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, सो अभी कुछ रीसेंट डाटा है जो मैंने सोचा कि सब पैनलिस्ट के साथ और सारे जो हमारे लोग आए हुए हैं आज एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ शेयर करने की मैंने सोची. तो जो बिग टेक है वो ऑलरेडी हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से आ गया है. अगर आप देखो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड फैंगमैन. फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, इनकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन 7 ट्रिलियन हो गई है, विच इज इक्वलेंट टू कंबाइंड जीडीपी ऑफ जर्मनी, इटली एंड इंडोनेशिया. सो these 7 companies have more GDP compared to these 3 countries now. और But if you see the other countries like African countries, then it will be multifold. It will be multifold. और टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन की अगर थोड़ी बात करें तो करीबन 60 साल हो गए हैं कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन शुरू हुए. 40 साल हो गए लगभग जब हमने माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया था. तो माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद से चीजें फास्ट होनी शुरू हो गई, चीजें छोटी होनी शुरू हो गई. और लगभग 20 साल हो गए हैं जिस टेक्नोलॉजी को हम आज की डेट में सबसे ज्यादा जानते हैं, इंटरनेट को. तो फाइनली इस इंटरनेट के आने से हम लोग कहीं भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और पूरे ग्लोब में कहीं भी सेल कर पा रहे हैं. और अगर आज के समय की और बात की जाए, थोड़ा और माइन्यूटली जाया जाए, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुक सेलर अमेजन टेक कंपनी है. सबसे ज्यादा वीडियो सर्विस के सब्सक्राइबर टेक कंपनी है नेटफ्लिक्स. सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट कंपनीज इंडिया में वर्ल्ड वाइड वीडियो गेम मेकर्स हैं, वो अगेन टेक है. सबसे बड़ा डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म गूगल है, टेक है. लिंक्डइन सबसे बड़ी रिक्रूटिंग कंपनी है वर्ल्ड की, टेक है. अब बात की जाए इंडियन परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे सारे जितने आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, वो सब इंडिया से ही हैं. तो इंडिया में देयर आर मोर मोबाइल फोन्स देन नंबर ऑफ टॉयलेट्स. एवरीबडी इज हैविंग ए मोबाइल फोन. तो आप सोचिए आपके कस्टमर के हाथ में मोबाइल फोन है जिसपे वो सबसे ज्यादा समय बिताता है, तो आपको उसे मार्केटिंग वहां करनी पड़ेगी. इंडिया में जो डाटा के यूज की ग्रोथ हो रही है दैट इज 100% पर एनम ऑलमोस्ट. मतलब हम हर साल डबल डाटा यूज कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले. और आप देखिए इंडिया वर्ल्ड वाइड कितना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली गूगल सेड कि $10 billion दे आर गोना इन्वेस्ट इन इंडिया जस्ट टू हैव ए पाई ऑफ दिस इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत तेजी से टेक की तरफ जा रहा है. तो हमारे सारे कस्टमर्स जो आज की डेट में दे आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, दे आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, गूगल. हमें वहां पे मार्केटिंग करनी है. तो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की अब इस बिल्कुल सेशन पे थोड़ा सा इसे जोड़ते हैं सेशन के साथ. टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हर एक आदमी जो भी बिजनेस करे, जैसे गौरव सर ने वो मेगा मार्ट का मॉडर्न बाजार दिया, मॉडर्न मार्ट का, विवेक ने भी दिया, गौतम सर ने एग्री बिजनेस के बारे में बात की. तो एवरी कस्टमर इज हैविंग ए मोबाइल एंड ही इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल, more than what he is spending on road, on parks, on somewhere else. तो आपको आज की डेट में होर्डिंग लगाने का उतना फायदा नहीं है जितना somehow उसे फेसबुक ऐड दिखाने का है, क्योंकि he is spending more time there. So tech is changing the nature of business completely. और वो टेक्नोलॉजी हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इज वन ट्रेंड that should fuel your business. So this is the time to actually use tech. देखिए आपको हमेशा टैग बनाने की जरूरत नहीं है. हम में से बहुत लोग कोडिंग नहीं जानते हैं, हम में से बहुत लोग हम लोग नहीं जानते कि जूम किस तरह से काम कर रहा है, क्या कोडिंग यूज हो रही है, बट वी कैन यूटिलाइज इट. You can utilize it to reach more and more people. We can run Facebook ads. We can reach them on WhatsApp. जैसे विवेक ने बताया हम लोग YouTube यूज करते हैं और WhatsApp यूज करते हैं. So दो चीजों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हमने बन गया बिना टेक्नोलॉजी को जाने हुए, बट हम उसे अच्छे से यूज कर रहे हैं. So the all entrepreneurs should focus on कि हम टेक्नोलॉजी को लीवरेज किस तरह से कर सकते हैं अपने कस्टमर के पास जाने के लिए और कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए. I think that is technology entrepreneurship in today's time for all entrepreneurs. तो आशीष जी आपने दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज नो मोर ऑप्शन,
Yes. इट इज एन मैंडेटरी थिंग एंड द फाउंडेशन थिंग। और आपने बड़ा बुलिश होके बताया कि इंटरनेट इज द ओनली थिंग विच यू नो एवरीबॉडी शुड लुक इट। तो अब मैं इनोवेशन इसमें नहीं और करना है अपने को, बट यूज करना है उसको, लीवरेज करना है फॉर रीचिंग द कस्टमर। इसमें मैं और एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये जो आप यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहें कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रेंचाइजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू बिल्ड योर बिजनेस। सो फ्रेंचाइजी में क्या होता है, ऑलरेडी 50-100 उनकी टीम्स काम कर रही होती है। सो दे हैव गॉट फंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे कीप कमिंग अप विद न्यू थिंग्स जो विच कैन बी यूटिलाइज्ड, विच कैन बी लीवरेज्ड फॉर मोर कस्टमर्स, मोर प्रॉफिट मेकिंग। जैसे विवेक ने बताया कि जैसे हमारी 50 ब्रांचेस हैं, नॉट एवरीबडी कुड रीच कंक्लूजन कि यार फेसबुक यूज करनी है और व्हाट्सएप यूज करना है और यूट्यूब यूज करना है। इट विल मेक ए वेरी गुड किलिंग सिस्टम जिससे कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे। बट हमारी R&D टीम ने वो चीज बता दी। तो अभी टाइम है कि वी यूज एफिशिएंसी ऑफ दिस फ्रेंचाइजी सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी टू मेक ए प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस। तो करेक्ट आशीष जी, आपने बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम को बड़ा नैरो डाउन करके समझाया है, एंड आई होप सबको समझ में भी आया होगा कि इनोवेशन करने की आज जरूरत नहीं है। जो लोग पहले से ही R&D कर चुके हैं, जिन लोगों ने उसमें पैसा फ्यूल डाला हुआ है, देन आई थिंक वी कैन लीवरेज इट फॉर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजी एंड देन इम्प्लीमेंटेड इन दी प्रोसेसेस, जैसा गौरव सर ने बताया। गौरव सर, आई एम कमिंग टू यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक काफी कुछ इसमें कोरिलेशन रहेगी, लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू। We talk about automation and many other words related with technology. What advantages are part as a technology entrepreneurship? We can break up few points into that. So, these big words, कभी कभी हम लोग ये वर्ड सुन के घबरा जाते हैं। ऑटोमेशन, आज आर्टिफिशियल सर वो घबराना इंटेलिजेंस। नहीं है अपने को, वही आज का टॉपिक ही है कि टेक्नोलॉजी जो वर्ड है सर, आज अगर हमने ये इस पे विजय पाली तो समझो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो जैसे ऑटोमेशन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, बिग डेटा एनालिटिक्स हुआ, ये सारी चीजें हमें वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, बट आज देखिए कि ये हर चीज आपके सामने पहुंच चुकी है। आपको शायद फील भी नहीं हो रहा होगा। ऑटोमेशन, हर जगह ऑटोमेशन है, हर चीज में ऑटोमेशन है आज की डेट में। छोटी से छोटी चीज भी ऑटोमेटेड है। अब वो आप मैनुअल तरीके से नहीं करते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। आप अपने आसपास के गैजेट्स को भी देखेंगे, अपने आसपास कुछ भी चीजें देखेंगे, तो सब आज की डेट में एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रही हैं। टीवी भी जो अब पहले होते थे, टीवी स्मार्ट टीवी नहीं होते थे, आज स्मार्ट टीवी है। टीवी को पता है, टीवी के अंदर एक इंटेलिजेंस का एक मॉड्यूल बिल्ट है जो उसको कॉन्स्टेंटली सिखा रहा है, कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम बिजनेसेस में, अपने बिजनेसेस में ही प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं बेटर एफिशिएंसी निकालने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था कि हमने टैली का पैकेज इस्तेमाल करना शुरू किया या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारा एक पूरा का पूरा अकाउंटिंग वाला पार्ट बिल्कुल सहूलियत से हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं चेन्नई गया था, तो मैं रेनॉ की फैक्ट्री गया, रेनॉ गाड़ी की फैक्ट्री। उन्होंने एक छोटा सा रोबोट बनाया है और वो रोबोट मैग्नेटिक स्ट्रिप पे चल रहा है, और उसका काम ये है कि स्टोर से लेके शॉप फ्लोर तक टायर और पार्ट्स पहुंचाना। अब उसके आगे सेंसर लगे हुए हैं तो किसी से टकराता नहीं है, और उसकी अपनी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है। जब वो स्टोर में होता है उसके ऊपर सामान लोड कर दिया जाता है और उसके बटन दबा दिए जाते हैं। उसको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे शॉप फ्लोर पे लेके जाना है इस सामान को, और सेंसर लगे हैं तो अगर कोई सामने कोई चीज आ गई, कोई चीज पड़ी हुई है बीच में, तो वो रुक जाएगा वहां पे और अपना बीप दे देगा। अब आप देखिए इससे फायदा कितना हुआ। ये एक छोटा सा प्रोसेस ऑटोमेट करने से आपकी मैन पावर कॉस्ट बची। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी से आप देखिए कि आपकी सेफ्टी कितनी बढ़ गई। शॉप फ्लोर पे अब लोग इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, सामान लेके इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी सेफ्टी बढ़ गई। आपके शॉप फ्लोर पे आपके एक्सीडेंट का रिस्क कम हो गया। ये छोटी छोटी प्रोसेसेस को लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, और यही हमें भी अपने बिजनेस में सोचना है। हम छोटा सा, मतलब आज से 25 साल पहले अगर आप देखें तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना लोगों को लगता था कि ये क्या चीज है, बट आज की डेट में कैलकुलेटर के बिना कोई लाइफ ही नहीं है। आप मोबाइल में भी कैलकुलेटर खोल के फटाफट अपना हिसाब कर लेते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा पार्ट बन चुका है लाइफ का, और जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी हमारा पार्ट बनता जाता है हम उसके बारे में सोचना कम कर देते हैं, उससे घबराहट कम हो जाती है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। मैं कुछ दिन पहले अभी
लास्ट ईयर की बात है, नवंबर दिसंबर में भुवनेश्वर गया था। तो भुवनेश्वर में मुझे पता लगा कि जो गूगल ड्राइवरलेस कार बना रहा है उसका रिसर्च यहाँ चलता है। तो मैं पता करके वहां पे गया, अनुदीप फाउंडेशन करके वो है जो एनजीओ वो चला रहा था। वहां पे लड़कियां बैठी थी और उधर से आपके यूएस के, न्यूयॉर्क के स्ट्रीट, बॉस्टन के स्ट्रीट की फोटोग्राफ्स आती हैं। उनका काम है उस फोटोग्राफ को देखना और उस पे कोड करना कि इधर पटरी है लेफ्ट साइड पे और स्टॉप साइन का बोर्ड लगा है और आगे रेड लाइट आने वाली है। वो सिर्फ वो लिखना है कि हर फोटो में क्या लिखा है। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है उसकी कोडिंग करना। अब पीछे आदमी जुड़े हैं जो उस ड्राइवरलेस कार को चलने में मदद करेंगे कि जब वो सेंसर वो देखेगा इस तरह का एक साइन, तो उस साइन का क्या मतलब है, गाड़ी को क्या इंटरप्रेट करना है, वो कोई बैठ के यहाँ पे भुवनेश्वर में कोड कर रहा है। आप सोचिए, ड्राइवरलेस कार चलेगी न्यूयॉर्क में और भुवनेश्वर में हम लोग उसको कोड कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आज की डेट में जरूरी हो चुका है। बड़े बड़े वर्ड्स से हमें घबराना नहीं है, ये वर्ड्स ही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं रोज। तो गौरव सर, इसमें एक और चीज आती है कि जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो बात आ रही है कि कई लोग अडॉप्शन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि बिना टेक्नोलॉजी के चल जाएगा। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्या वो अगर यूज नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे उस जर्नी में, जो जर्नी उनकी सक्सेस की जर्नी है? अभी 15 तारीख को मोदी जी का एक स्पीच में सुन रहा था। उनका एक मंत्र था उसके अंदर, और जो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मंत्र उन्होंने बोल दिया, स्टे रेलेवेंट। अगर आप रेलेवेंट नहीं हैं तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और रेलेवेंट रहने का मतलब ही ये है कि अपने आप को पूरी तरह नई नई टेक्नोलॉजी से लैस करना, उसके बारे में समझना, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो करना। तो स्टे रेलेवेंट इज द वर्ड। अगर आप रेलेवेंट नहीं है तो आप खत्म है उस वक्त। मैं आई थिंक अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि अभी टाइम है, हम सोच समझ सकते हैं, चीज़ों को राइट करें और अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करें। गौरव सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं कि कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के बाद में दे कैन ऑलरेडी एनालाइज कि भाई कितना मेरा कॉस्ट आ रहा है, कितना मैंने लेबर लगा रखी होती तो क्या कॉस्ट आती। दैट्स अ वंडरफुल थिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। गौतम सर, दिस इज अगेन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑटोमेशन की हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस एक्स्ट्रा रहती हैं इसमें? गौतम सर। देखिए, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं अभी, जो बर्डिंग इंटरप्रेन्योर्स है, या जो अभी थॉट प्रोसेस लेवल पे हैं, या जो नए नई स्कीम मान जो नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, उनके साथ अभी आप ढेर सारे इंक्यूबेशन सेंटर सारी यूनिवर्सिटीज ने खोल के रखे हुए हैं। हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेटली भी लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स चला रहे हैं। उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में इंटरप्रेन्योर्स का सिलेक्शन तभी वो लेते हैं जब कहीं ना कहीं आपके पूरे कॉन्सेप्ट में कोई टेक्निकल इंटरवेंशन हो या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा, तभी आपको वो इंक्यूबेशन में लेते हैं। आज की तारीख की बता रहा हूँ। यदि आपके कॉन्सेप्ट में या उसमें इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है तो आपको सेलेक्ट ही नहीं करते, इंक्यूबेशन के लिए भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। बाद में जो फर्दर एक्सीलरेटर फंड जनरेट करते हैं वो सब की तो बात बाद में है। तो ये जान लीजिए कि यदि कोई इंटरप्रेन्योर है या बनना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसको इनका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज गुड फॉर हिम ऑल्सो एंड गुड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। क्योंकि वो जैसा बताया कि गौरव सर ने बताया कि वो मोदी जी ने कहा स्टे रेलिवेंट। तो यदि हम शुरू से ही टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लेके चल रहे हैं तो वो आदमी अपने आप को विद द टाइम अपडेट करना खुद उस इंटरप्रेन्योर को आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि हमें कब अपडेट करना है, कब हमें और इम्प्रूव करना है, कब हमें न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है, फार्मिंग करते करते कब हमें ड्रोन पे कब शिफ्ट कर जाना है, व्हाट इज द राइट टाइम। तो वो सब चीजें बिना ये कॉन्सेप्ट में ही रखना पड़ेगा इंटरप्रेन्योर को। तो सर, ये एडवांटेजेस की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया जरूरत कि भी उसको अगर फंड लेना है तो वो वहां जा सकता है। बट अगर हम एडवांटेजेस की बात करें क्लियर 2-3 वर्ड्स के अंदर, जैसे एक था कि स्टे रेलेवेंट। रेलेवेंट रहने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरत है।
तो आपकी तरफ से कौन से वो 2 पॉइंट होंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ध्यान रखें इस चीज का कि हमारे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए, टेक्नोलॉजी से एक तो है कि रीच, चाहे मैं एग्री सेगमेंट की बात करूं, एक तो सोर्सिंग के लिए भी उसकी रीच बढ़ जाती है और मार्केटिंग के लिए, कस्टमर दोनों के लिए उसकी रीच बढ़ जाती है यदि ये एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। इवन अप टू द फार्मर्स लेवल जितनी भी कंपनीज हैं सब अभी ऐप पे आ गई हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी में एग्री इनपुट में हो, चाहे प्रोसेसिंग में हो, ये सब ऐप पे आ गई हैं क्योंकि उनको या तो सोर्सिंग करनी है या मार्केटिंग करनी है। तो करेक्ट ये करेक्ट। सो आपका एक कंक्लूजन है कि लास्ट माइल जो रीच है टू द कस्टमर, टू द फार्मर, वो बहुत ज्यादा है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। विवेक सर, आप क्या कहेंगे सर, इसमें क्या एडवांटेजेस हम देख सकते हैं आफ्टर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी रादर देन यूजिंग द ट्रेडिशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म? जितिन, मार्केटिंग ऑटोमेशन का जो एक एडवांटेज है या टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप का एडवांटेज है, इट इज अ 24/7 बिजनेस। जैसे 24/7, करेक्ट, दिस इज द राइट। राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉप खोली सुबह 11 बजे और 5 बजे बंद करके चला गया, उसके बाद कस्टमर नहीं आएगा। मेरा बिजनेस ऐसा है कि जो पूरे दिन भर चलता रहे। मैं अगर रात में भी सो रहा हूँ तो मेरा कस्टमर मेरी कंपनी में साइड विजिट कर रहा है, मेरे जो वीडियोस बने हुए हैं वो उन वीडियोस को देख रहा है और एक्चुअल साइट को वो देख पा रहा है वहां पे। आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा चालू है। हाँ, और सेकंड, मेरा जो कस्टमर एक्विजिशन है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं एक्वायर करता जा रहा हूँ कस्टमर। अगर मैं रात में सोने भी चला जाता हूँ तो मेरा कस्टमर एक्वायर हो रहा है। बट अगर किराना स्टोर के कंसेप्ट में देखे या कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कंसेप्ट देखे तो आपको फिक्स टाइमिंग है, बस उतने टाइम से आप इंटरेक्ट कर सकते हो कस्टमर के साथ में। तो हमारा टाइम लीवरेज इसमें हो रहा है सर, ज्यादा से ज्यादा टाइम हम यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पे रीच, रेलेवेंसी एंड द टाइम जो आपने बात करी। एंड सेकंड, या वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड, कि आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है कस्टमर की वो बहुत कम हो जाती है अगर आपको राइट टेक्नोलॉजी यूज करना आता है या बनाना आता है। Okay, so cost of acquisition and 24/7, the more work we can do by using this technology. डॉक्टर सुमित, आप क्या कहना चाहेंगे सर? एडवांटेजेस के बारे में हम बात करें। एडवांटेज डेफिनेटली, इफ यू गो फॉर टेक्नोलॉजी, एडवांटेज बहुत ज्यादा है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी के हेल्प से कोई आपको चीट नहीं कर सकता, स्पेशली जैसे विवेक जी बोले मार्केटिंग के वे में। नॉर्मली अर्लियर वी यूज्ड टू पुट द एड्स इन न्यूज़पेपर एंड ऑल, इतना हाई कॉस्टिंग पड़ जाता है। लाइक इफ यू गो फॉर अ फुल पेज एड इन एनी लीडिंग न्यूज़पेपर, वो पर डे के अराउंड 10 to 15 लाख चार्ज करते थे, और हमको ये भी नहीं पता चलता था कि विजिबिलिटी कितना मिलेगा हमको। नॉर्मली मीडिया वाले बोल देते हैं कि हमारे 4 लाख 5 लाख व्यूअर्स हैं एंड दे विल बी वॉचिंग। तो नॉर्मली न्यूज़पेपर का 6 सेकंड का लाइफ होता है, अ पर्सन सी दैट एंड विद इन 6 सेकंड दे टेक इट ऑफ। तो 6 सेकंड कैसे आपको विजिबिलिटी मिलता है व्हेन, बट इफ यू आर स्विचिंग टू टेक्नोलॉजी, if with the help of Facebook, Instagram, Google, so if you are putting the ad, the costing will go for up to 50% down, और आपको विजिबिलिटी का एग्जैक्ट काउंट मिलता है कि आपका एड्स कितने लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का कि आपको कोई चीट नहीं करेगा, जो भी नंबर ऑफ व्यू है वो एग्जैक्टली पता चलेगा। इवन ये तो पता चलता है कि आप कितने सेकंड तक देखे हैं उस एड को। So you mean to say, Dr. Sumit, cost of marketing and transparency is more in this technology-oriented marketing thing. Right. So ये हम जी, yeah, it's a trustworthy because I'll give you an example. We recently have started a company called Print to Block. So Print to Block में हमने क्या किया, हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते थे, वो लोग जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू गेट अ एफिडेविट साइन एंड नोटराइज्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। पर उनको क्या करना पड़ता है, उनको आरटीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आरटीआई पास करता था, जो यूनिवर्सिटी जाता था। यूनिवर्सिटीज में वो लोग फिर क्रॉस वेरीफाई करते थे, फिर उसे सील करते थे, एंड वापस वो मिनिस्ट्री आता था, देन वीजा प्रोसेस चालू होता था। तो ये सब प्रोसेस में 2 महीने का टाइम लगता था। विद द टेक्नोलॉजी हेल्प, प्रिंट टू ब्लॉक जो टेक्नोलॉजी हमने लाए हैं, उसमें हर सर्टिफिकेट में हम लोग सिर्फ एक बार कोड डाल रहे हैं, एंड वो बार कोड ऐसा है कि आप कहीं पे भी लगाएंगे और तुरंत स्कैन करेंगे और विद इन फ्यू सेकंड आपका पूरा डिटेल इमीडिएटली आपके कंप्यूटर शो कर देगा। तो ये 2 महीने का प्रोसेस है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है इसमें। डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, एंड फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे चल के आपका कॉस्टिंग बहुत बच जाएगा। लाइक सब कुछ डिजिटली प्रिंट होने वाला है, तो आपको जो पेपर यूसेज है, जो वेस्टेज है, इवन नेचर के लिए बहुत अच्छा है, कोई ट्रीट नहीं करेगा। आशीष जी, आई एम कमिंग टू यू। बिफोर आई विल टेल यू, अभी तक जो हमारे पैनलिस्ट हैं उसमें एक तो रेलेवेंसी का बहुत बारे में बात की गई है कि रेलेवेंसी विद टेक्नोलॉजी
able to maintain this. Then हम reach की बात कर रहे हैं, reach advantage है. Then 24/7 हमें timing ज़्यादा मिलता है. Cost of marketing बड़ी कम आती है. Cost of acquisition of the customer भी कम आती है. So can you add one more or two more points in this advantage for this technology? जी, मेरे हिसाब से देखिए टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े जो दो फायदे हैं, वी टॉक ए लॉट अबाउट एजाइल फ्रेमवर्क इन टेक्नोलॉजी, कि कंपनीज को किस तरह से मोर एजाइल बनाना है. देखिए जितने ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, कि आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपके पास बहुत मैन पावर है, आप अगर उसे चेंज करना चाहते हैं, को आप डिफाइन कर पाएंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर पाएंगे. एजाइल का मतलब होता है कि फास्ट चेंजिंग. यू कैन चेंज एवरीथिंग फास्ट. जैसे आप देखो कि आपको कल एक शॉप लॉन्च करनी है, आपने सोचा कि मुझे ना एक दुकान खोलनी है, तो आपको नॉर्मली आपको टाइम लगेगा कई महीने का. पहले आप दुकान ढूंढने जाएंगे, फिर उसके बाद आप उसमें इंटीरियर करवाएंगे, फिर आप सामान लाएंगे. योर आइडिएशन टू मार्केट टाइमिंग विल बी ऑलमोस्ट लेट अस से 3 months. बहुत कट करके करते हैं 3 months. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी टीम है, आइडिया है, which I will say कि you can collaborate with franchisee again. अगर आपके पास ये सब है तो आप अपनी टेक की जो दुकान है, फेसबुक पे दुकान है या आप अपनी वेबसाइट है, आप एक हफ्ते के अंदर लॉन्च कर सकते हैं. आप किसी भी फ्रेंचाइजी टीम से कोलैबोरेट करके सारी प्रोडक्ट्स लेकर के आ सकते हैं, which can be put on your shop within a single day. You can launch your shop within 2 days and your actual business will start within 1 week. So आपका जो 3 महीने का टाइम है, वो 3 महीने भी हमने बहुत खींच करके बात की, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. वो 3 महीने से आपने टाइम कट करके 1 week कर दिया. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी पूरी बनी हुई है, आपने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, फास्ट इंप्लीमेंटेशन हो गया, तो जो आपका जो बिजनेस है वो एजाइल हो गया. सो 3 महीने जो आपका कॉस्ट टाइम था, कॉस्ट टाइम आपका घट के 1 हफ्ता हो गया, और 2 months 3 weeks आपका प्रॉफिट सेंटर बन गया आपका बिजनेस. तो हम इसको प्रोसेसेस में डाल पाएंगे इस बात को कि एजाइल फैक्टर हैज टू बी देयर. हाँ डेफिनेटली. देखिए एजाइल फैक्टर है, और हमने बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं जैसे 80-20 प्रिंसिपल की, कि जो आपका 20% बिजनेस के प्रोसेसेस होते हैं वो आपको 80% प्रॉफिट कमा के देते हैं. तो जब आप टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस यूज करते हैं तब आप बहुत फास्ट हो जाते हैं. जैसे आज हम जूम पे सबका वेबिनार कर रहे हैं, कल को लगता है कि जूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो वी कैन स्विच टू वेबिनार जैम, गूगल मीट, जियो मीट, एट द स्पीड ऑफ आवर थॉट. हम बहुत तेजी से वहां चेंज कर सकते हैं. तो हमारी जो कंपनी की स्पीड है चीजें चेंज करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की, वो बहुत फास्ट है. तो एजाइल है हम. एजाइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट्स. सो जितना हम ऑटोमेट करेंगे, जैसे गौरव सर ने बात की स्टे रिलेवेंट, जितना हम स्टे रिलेवेंट रहेंगे. फिर गौतम सर ने बताया कि काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां पर R&D बहुत हो रही है, तो आप इस R&D के साथ R&D को यूज करते रहिए, रिलेवेंट रहिए और प्रॉफिटेबल बने रहिए. आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर दैट थिंग. Thank you, Ashish ji. So you have added this agile thing. Technology entrepreneurship में agilability बहुत आती है, जिसके कारण की profitability बढ़ने के chances बहुत ज़्यादा है. Thank you, Ashish ji. So now we are moving to our next question. Gaurav sir, this question is for you. Is technology entrepreneurship is only for extreme tech savvy people, or normal people can also scale their business in this domain? बहुत लोग जानना चाहते हैं सर ये सवाल, because काफी सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप बाय हार्ट भी होते हैं एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड की वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं अपने घर में एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है. तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, क्या वही लोग कर सकते हैं जो बीटेक पढ़ के आ रहे हैं या जो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, या कोई भी आदमी अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर सकता है? देखिए इसके लिए हम फिर थोड़ा सा बेसिक चीज पे बात करते हैं. आप उन्हीं से अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं आज की डेट में नेट बैंकिंग इस्तेमाल करता हूँ? क्या मैं ATM इस्तेमाल करता हूँ? क्या मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ? ये सब टेक्नोलॉजी है. अगर मैं ये सब कर पा रहा हूँ तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा? हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने नहीं जा रहे हैं. डेवलप कोई और करेगा, हमें उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है. और उसके इस्तेमाल करने का जो मतलब है कि हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. हमें क्रिएट नहीं करनी है, हमें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए. मैं अब एक बहुत लाइव एग्जांपल आपको देता हूं. अगर मैं चाहूं कि मैं गाड़ी बना लूं तो क्या मैं गाड़ी बना सकता हूं? मैं नहीं बना सकता, पर बनी हुई गाड़ी को मैं चला तो सकता हूं. यही डिफरेंस है.
टेक्नोलॉजी बनेगी जिससे आप अपने बिजनेस में जिसको आप यूज करेंगे, पर आपको टेक्नोलॉजी बनानी नहीं है। तो कहीं ये सवाल नहीं आता है कि आप बीटेक हैं या नहीं है, आपको उस टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए। टेक्नोलॉजी हर तरफ है, मैंने बताया हमारे टीवी फ्रिज से लेके हमारे मोबाइल फोन में, हमारे नेट बैंकिंग में, ये सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हर जगह है, तो इसमें कोई घबराहट नहीं है, बिजनेस में भी आएगी और बिजनेस में भी इस्तेमाल होगी। तो आपने सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सबको कि इनोवेशन नहीं करना है अपने को, बट हम उसको लीवरेज करें, उसको यूज करें कि भाई ठीक है ये व्हाट्सएप अवेलेबल है फॉर द मार्केटिंग, तो उसको यूज करना है अपने को। तो दैट्स अ बिल्कुल। वंडरफुल थिंग सर। मतलब ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की बात है, एक सर इसमें ये जो रिलायंस का एग्जांपल है, क्या इसमें भी कोट होता है कि एक पेट्रोल की कंपनी, गैस की कंपनी आज आईटी के अंदर धमाल मचाया हुआ है, एंड दे हैव नाउ स्टार्टेड दिस न्यू वर्टिकल, और अभी पैसा रुक ही नहीं रहा है वहाँ पे। देखिए रिलायंस आज की डेट में किस चीज में नहीं है, सभी चीज में है, और उसके लिए वो मंत्रा जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बोला, स्टे रेलेवेंट। पेट्रोल की हो सकता है रेलेवेंसी आज कम हो रही है, बट टेक्नोलॉजी की रेलेवेंसी ज्यादा है, टेलीकॉम की रेलेवेंसी ज्यादा है, तो वो उस बिजनेस में भी है, और इसी तरह से वो और भी बहुत सारे बिजनेसेस में है। So I think for that participants, Reliance can be a good inspiration. वो इसको देखते हुए बढ़ सकते हैं आगे। विवेक जी, मैं आपके पास डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बिकॉज बहुत रेलेवेंट करता है आपके बिजनेस में, और मैंने देखा है कि आप जो ये O2O बिजनेस करते हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो। तो कैन यू जिमी, आई मीन कि आपने क्या ये फेस किया है कि जो लेमेन जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी से ज्यादा वास्ता नहीं है, बट वो पैसे हैं उनके पास, बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केट है उनके पास, क्या वो यूज कर पाएंगे इसको? हाँ देखिए, सबसे पहले जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरी कंपनी के बारे में, तो हमारा टैगलाइन ही ये है regrowth.com का कि वी आर टेक एनेबल्ड रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म। सो वी हैव देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टेक एनेबल्ड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक गौरव सर ने बोला कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए जो अवेलेबल है, और एक होता है टेक्नोलॉजी बनाना। तो दोनों के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी बनाई भी है और टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज भी कर रहे हैं हम। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। एंड देयर इज ए आप जो कह रहे हो कि जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ बीटेक के लोग या जो बैकग्राउंड के लोग हैं वही यूज कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपनी टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स भी कर सकते हो। आप सेकंड, आप जिस टूल को यूज कर रहे हो उस टूल को बेटर तरीके से यूज करने आना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज अ लर्निंग कॉस्ट फॉर एवरीथिंग एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आज मैं आया और आज मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमने ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट 12-13 ईयर्स। तो हमने अपने बिजनेस को टेक एनेबल्ड बनाया जब 12-13 साल उसको दिए हैं वी हैव ऑलरेडी। तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं या जो हमसे फ्रेंचाइजी लेने भी आते हैं, तो उनको हमारा पूरा रेडीमेड मॉडल हम उनको टेक्नोलॉजी का दे देते हैं यूज करने के लिए। तो तो एटलीस्ट विवेक वो सर, टाइम। इसमें आप जब उनको चूज करते हो, फ्रेंचाइजी जब आपके पास आते हैं, तो क्या आप ये देखते हो कि वो क्या क्वालिफिकेशन है, किस बैकग्राउंड से आए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए कि उनको टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए, या वो ट्रेनिंग भी आप दे पाते हो? बिकॉज ये बहुत बड़ा मतलब एक डिलेमा रहता है दिमाग में कि यार मेरे को ये बिजनेस करना है तो क्या मैं कर पाऊंगा। कई बार क्या है, वो इंक्वायरी आने के बाद में भी शायद कई लोग ना कर पाते हो। नहीं, हम सबसे पहले चीज पूछते हैं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है, और कंप्यूटर है कि नहीं है। दैट इज द बेसिक थिंग। आई थिंक आजकल सबके पास ये इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, पैशन है कि नहीं, काम करना है कि नहीं। अगर टाइम पास करना है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वन शुड हैव अ पैशन फॉर बिजनेस। तो हम उसको सारी ट्रेनिंग देते हैं, A to Z देते हैं फ्रेंचाइजी के अंदर। उसको हम टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी कैसे रन करनी है, जो हम आपको दे रहे हैं अपनी यूज कैसे फ्रेंचाइजी करने हैं यूज बेसिकली? कैसे करनी है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में हम CRM देते हैं, तो आपको CRM यूज करने आना चाहिए। तो हम CRM की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। CRM के अंदर आपका ऑटोमेशन हो जाता है कि कस्टमर को ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा, SMS चला जाएगा कि आपकी सर इस दिन साइट विजिट है। तो उसकी ट्रेनिंग देते हैं हम। आपको वीडियोस कैसे बनाने हैं हम उनकी ट्रेनिंग देते हैं। तो हम पूरा A to Z पूरा सिस्टम उनको बताते हैं टेक्नोलॉजी यूज करने का। विवेक सर, इसमें एक बात बड़ी खास निकल के आ रही है कि आप बात कर रहे हैं कि जो यूज है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का, वो एक डिसिप्लिन बना देता है बिजनेस को। जैसे शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल दैट पार्टिसिपेंट्स कि
टेक्नोलॉजी से हम लोग काफी डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आई थिंक सब लोग सुन रहे होंगे। सुमित सर, जी तो द सेम क्वेश्चन फॉर यू कि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो टेक सेवी पीपल्स के लिए है या फिर नॉर्मल एक कॉमन मैन भी इसको यूज कर सकता है और स्टार्टिंग देयर न्यू बिजनेस? बेसिकली टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में जो आ रहा है ये कॉमन मैन के लिए ही आ रहा है। जैसे अगर हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं जो हम लोग अपने फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, जैसे अभी रिलायंस ने जो अभी लॉन्च किया है अपना गॉगल्स विद वर्चुअल रियलिटी, ये हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च कर दिया था। ये चीज में इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो वर्चुअल रियलिटी कैमरा पहन के वो अपने इंस्टीट्यूट में बैठ के वो पूरा एयरपोर्ट का नजारा ले सकता है। अगर उसको अगर रायपुर में बैठ के अगर वो स्विट्जरलैंड का जूरिक एयरपोर्ट देखना चाहता है तो वर्चुअल रियलिटी के कारण वो भी कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था लास्ट ईयर ही, बट हाँ ट्रेंड में अब आ रहा है ये, जब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो फ्यूचर यही है कि टेक्नोलॉजी बेस होगा और एक लेमैन भी यूज कर पाएगा। ये बहुत इजी है, कंपैटिबल है एंड इजी टू कैरी एनीवेयर टेक्नोलॉजी। तो तो यानी आगे कि चलिए यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा बैंडविड्थ अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले था कि नॉर्मली अगर हम लोग 100 को बोलते थे तो 5 यूज करते थे, और आज की डेट में ऐसे कि अगर 100 को बोलेंगे तो 95 यूज करेंगे। तो सर इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो उसमें आपको जी। क्या रेलेवेंस दिखता है कि जो टेक सेवी पीपल हैं वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करें इन द प्रोसेसेस, और या जो लेमैन है वो नहीं कर पाते हैं? कहाँ देखते हैं आप इस चीज को? नहीं, जैसे ही हमको ये पता चला, जैसे टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे अभी हमने बोला है वर्चुअल ट्रेनिंग्स के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण आज के डेट हमने फ्रेंचाइजी बहुत एक्सपेंड कर दिया है। तो हम हमारी ट्रेनर्स को ऑल द वे लाइक दे डोंट हैव टू गो टू सिक्किम और दे डोंट हैव टू गो टू मेघालय। वो लोग दिल्ली में बैठे बैठे ट्रेनिंग वहां देते हैं और बच्चों को एकदम एग्जैक्ट वही ट्रेनिंग क्वालिटी मिलता है जो उनको टीचर 1-to-1 ट्रेनिंग करवाते हैं। ये तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी की बात हो गई आई थिंक कि जी आपने वहां बैठ के आपने उसको वहां स्केल अप कर लिया। जी जी राइट सर, उसमें राइट। गौतम सर, आई एम कमिंग बैक टू यू, दिस relevancy of this tech savvy people for starting their technology entrepreneurship. नहीं, वो तो जैसा भी सब लोगों ने डिस्कस किया ये है, इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है। और एग्री सेक्टर में मैंने बताया कि यूजेस बढ़ रहे हैं। फार्मर्स भी आजकल स्मार्टफोन अवेलेबल हैं रूट लेवल तक, इवन हर किसान के पास, या जो ठीक ठाक किसान है उनके पास 2 तरह के फ़ोन है। एक तो छोटा वाला होता है जिसको लेके खेत वगैरह पे जाते हैं, लेकिन घर पे एक स्मार्टफोन रखते हैं जिसमें कि व्हाट्सएप आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। मेल वगैरह तक तो नहीं पहुंचे, ये तो है फार्मर्स लेवल की बात है, उतना अभी एडवांसमेंट नहीं आया है, एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर्स में जो फ्रूट्स एंड एग्रो कमोडिटी लॉजिस्टिक्स हैं, इसमें काफ़ी पहले ही ये हो चुका था। लोग जीपीएस लगा देते थे कि भाई, क्योंकि पेरिशेबल्स आइटम होते हैं, उनको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसा डिसिप्लिन की बात की आपने कि हाँ डिसिप्लिन करता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यदि कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता लॉजिस्टिक के थ्रू, वो खराब होने के 100% चांसेस होते हैं। माने 8 घंटे तो उसमें आदमी कैलकुलेट कर लेता था कि गाड़ी कहीं रुके नहीं, जीपीएस लगा दी, कहीं रुक रही है तो इमीडिएट फोन करना, क्यों, क्या रीजन क्या है, क्या सोल्यूशन निकलते, क्या दूसरी गाड़ी भेज दें, रिप्लेस करें उसको, कोई खराबी आई। तो ये सब चीजें एडवांसमेंट तो यूज हुआ है। मैं एक पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ये बेनिफिट रहा है, बहुत ही बेनिफिट रहा है उनके लिए, और आज भी यूज हो रहा है। अब थोड़ा और क्रिटिकली लोग यूज कर रहे हैं मूवमेंट में। और यदि प्राइसिंग के उसमें आए तो आज फार्मर्स इतने एडवांसमेंट तक पहुंच गया है कि वो आजकल जो से ई नैम बना हुआ है और कई प्राइसेस प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस रिफ्लेक्ट करती है कि किस मंडी में क्या रेट चल रहा है, कितना अराइवल है, क्या रेट चल रहा है। तो वो फार्मर्स ने, कुछ सारे तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ 2-4% जो अच्छे फार्मर हैं जिनके पास ऐप वगैरह की डाउनलोड करके यूज करते हैं, उनको पता लग जाता है किस मंडी में क्या अराइवल और क्या प्राइसेस है। तो गौतम वो सर, ये जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उनका एक इनकम साइज अच्छा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने देखा है कि काफी सारे डीएम लेवल पे उनको ना बड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये यूज कर रहे हैं और आपकी इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है। तो क्या टेक्नोलॉजी यूज करने से उनकी इनकम बढ़ी है सर? टेक्नोलॉजी यूज किया उन्होंने, नो डाउट, इसमें वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास था। क्योंकि वो जो बड़े फार्मर कैसे बनते हैं, वो अपने इनपुट के प्राइस को अच्छी तरह रियलाइज करके ही बड़े बन सकते हैं।
तो उनको पता है किस मंडी में क्या प्राइस चल रहा है। अब वो सपोज किसी मंडी में अराइवल कम है तो उनको पता है कि यार इस मंडी में अराइवल कम जा रहा है, इसका मतलब प्राइस होगी, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे 2-4 कुछ नोन है कि हमारा भाड़ा कितना लगेगा, कितना डीजल लगेगा, तो हम इतने डीजल में भेजते हैं तो वहाँ ये प्राइस चल रही है तो हमें बच सकता है। तो बहुत वो अच्छा सर, एक एडवांटेज पॉइंट निकल के आ रहा है कि इनकम भी हमारी जो यूसेज है एंड यूजर वो भी बढ़ा पा रहा है बाय जस्ट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, नॉट बाय इन्वेंटिंग और बाय इनोवेशन। तो जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं वो आई थिंक मेजर चंक नहीं है पूरे इंडस्ट्री का। तो आई थिंक ये यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो भी यही है कि हम लोग सस्टेनेबल प्रॉफिट्स देख सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई एम आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 के साथ में, कि आपको दोनों क्वेश्चन के एक साथ जवाब देने होंगे। सो नाउ आई एम मूविंग टू दिस क्वेश्चन टू गौरव सर। सर, दिस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप इज सस्टेनेबल एंड प्रॉफिट फॉर स्मॉल बिजनेस। तो हम उधर प्रॉफिट्स की ही बात कर रहे हैं कि उनको यूसेज से क्या हम सस्टेनेबल एंड प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं सर स्मॉल बिजनेसेस में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इसमें जैसे कहा कि स्टे रेलेवेंट, कांस्टेंट अपग्रेडेशन, इन सब चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल फिर देना चाहूंगा, ऑर्कुट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप, अब ये सब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है। जो रेलेवेंट नहीं रहा वो बिजनेस से बाहर हो गया, जिसने अपने आप को रेलेवेंट रखा वो बिजनेस में रहा। फेसबुक ने आज की डेट में भी, इंस्टाग्राम और सब उन्हीं की कंपनियां हैं, और उसके आने के बावजूद भी आज की डेट में फेसबुक रेलेवेंट है, क्योंकि फेसबुक ने बहुत सारी नई चीजें शुरू कर दी। मैं अपनी स्क्रीन पे देख सकता हूँ, लेफ्ट साइड पे लाइव ऑन फेसबुक दिखा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है फेसबुक पे, लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं फेसबुक पे, फेसबुक का जॉब्स पेज बन गया है। तो आप कितना अपने आप को रेलेवेंट रखते हैं, कितना आप अपग्रेड करते हैं, ये तो हुई लार्ज बिजनेस की बात। यही चीज छोटे बिजनेस पे भी एप्लीकेबल है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रखना है ताकि आप नई से नई चीज को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकें और अपने बिजनेस को रेलेवेंट बना सकें। और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता हो, और जब भी वो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो उसको आप अडॉप्ट करें और जल्दी से जल्दी उसको लें और यूज करें। तो राइटली सेड सर, स्मॉल बिजनेसेस को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड है आजकल टेक्नोलॉजी से। और जैसा आशीष जी कहते आए हैं कि रेलेवेंसी इंटरनेट की अगर नहीं है, कंपनी के अंदर फाउंडेशन नहीं है, तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। थैंक यू गौरव सर। आशीष जी, मैं अगेन आपसे सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक तो टेक सेवी पीपल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बेटर है या नॉर्मल आदमी भी यूज कर सकता है? एंड हाउ इट इज रेलेवेंट फॉर मेकिंग सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस के लिए? तो दोनों क्वेश्चन का एक साथ थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक बिजनेस के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एवरी बिजनेस हैज टू वर्क ऑन। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे गौरव सर ने बताया था पिछले सेशन में गोइंग कंसर्न, तो कुछ चीज मेरे दिमाग में आई थी। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। आप तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में टेक्नोलॉजी हैज ए वेरी टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देती है, आपको एजाइल बना देती है, और आपकी जो कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन है वो समहाउ आपकी कम हो जाती है। जैसे आप एक कस्टमर को लेकर के आते थे, ऑफलाइन लेकर आते थे, बोर्ड लगाते थे, तब वो कस्टमर आपके पास पहुंचता था, तो एक कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट लेटर से 500 रुपए होती थी। नाउ यू कैन डू सम टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजिंग गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन रिड्यूस इट टू 50 रुपीज। तो आपको जो 450 रुपए जो आपकी कॉस्ट में से कम हुआ, तो दैट इज योर प्रॉफिट। प्लस आप वो कस्टमर का लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। पहले क्या होता था, कस्टमर आपसे सामान लेके चले जाता था, तो देयर वर नो एंगेजमेंट टूल्स। नाउ यू हैव गॉट लॉट ऑफ एंगेजमेंट टूल्स। लेटर से आपने किसी को अपना मोबाइल बेचा, तो आप कंसिस्टेंटली उसे एजुकेट कर सकते हो कि इस तरह से चलाना कैसे है, लॉक कैसे लगाना है, एट ए फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, उसे ईमेल लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उसे टेलीग्राम लिस्ट में ऐड कर सकते हो, कंसिस्टेंटली रीच कर सकते हो। ये सर मार्केटिंग की बात हो गई है सर। जी, प्रोसेसेस की अगर बात करें सर? हाँ, जैसे मैं मार्केटिंग में प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ, एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ, कि जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, ट्रांजैक्शन और एंगेजमेंट कॉस्ट आपने कम कर दी बेटर प्रोसेसेस करके।
एंगेजमेंट प्रोसेसेस कर दिया। और दूसरी चीज होती है, एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी पोजीशन को डिफेंड कर पाए। कोई दूसरी कंपनी, जैसे सर ने बताया ऑर्कुट को फेसबुक ने आकर के डिस्टर्ब कर दिया, सो ऑर्कुट अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाई। तो इन्हें स्मॉल लोकल इकोनॉमी, अगर आप लेटर से एक मोबाइल शॉप चला रहे हैं, तो देयर कैन बी अनदर मोबाइल शॉप दैट कैन कम अप, प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एंड इट कैन डिसरप्ट यू। सो आपको अपनी पोजीशन को डिफेंड करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। सो टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट फैक्टर देयर। आप मार्केटिंग भी बेटर तरीके से कर सकते हो, कॉस्ट भी कम रख सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, और अपने कस्टमर को बेटर तरीके से एंगेज भी कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी दोनों जगह है। अब जो पहला वाला क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ बहुत टैक्स से भी पीपल ही यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस कर सकते हैं, तो हम एक छोटा सा एक लाइव केस स्टडी देखते हैं कि हाउ मोबाइल इज सोल्ड। मोबाइल देखिए बन के आते हैं, तो जब मोबाइल, जैसे मैं यूज करता हूँ, मुझे मोबाइल का नहीं पता कि ये इसमें कौन सी चिप लगी हुई है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, बट आई नो इट्स फीचर। सो जब मोबाइल बन के आता है, तो जो उसे बेचने वाले लोग होते हैं, दे डू नॉट नो कि ये कैसे बन रहा है, बट दे नो इट्स फीचर। तो बेचने में भी दो तीन तरीके के लोग हो जाते हैं, एक जो ऑफलाइन बेच रहे हैं, एक जो ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो ऑनलाइन बेचने वाले के लिए टेक्नोलॉजी है, जो चीज आई उसे बेटर तरीके से अपने कस्टमर्स तक कम्युनिकेट करना, वेदर इट इज ऑन फेसबुक, वेदर इट इज ऑन फ्लिपकार्ट, वेदर इट इज ऑन गूगल और अमेजन। ही शुड नो दीज प्लेटफॉर्म्स वेल। ही डज नॉट नीड टू नो कि मोबाइल ये बना कैसे, उसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है और सेल करना है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, नॉट VLSI और चिप मेकिंग। फिर आते हैं हम ऑफलाइन। सेकंड हमारा जो शॉपकीपर है, उसके लिए उसने एक व्हाट्सएप लिस्ट बना रखी है, एक ईमेल लिस्ट बना रखी है, या एक फ्लिपकार्ट, एक टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है कि सही तरीके से फीचर को कम्युनिकेट करना व्हाट्सएप पे, सही टाइम पे पेमेंट ले लेना। उसे पेमेंट कैसे लेना है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टा मोजो से लेना है, पेटीएम से लेना है, इजीएस्ट। ये जैसे 4Ps का 4Cs बना है, तो 4Cs में कन्वीनियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सही कन्वीनियंस कस्टमर को देकर के क्लोज कर लिया। सो दैट इज टेक्नोलॉजी फॉर हिम। सो टेक्नोलॉजी इज आल्सो कंटेक्चुअल, चेंज हो रही है। सो अब हमने देखा इस मोबाइल की जो वैल्यू चेन है, इसमें नॉट एवरीबडी इज एन इंजीनियर। शॉपकीपर या जो अमेजन पे सेल कर रहा है, वो दे आर नॉट इंजीनियर्स, बट वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से इनोवेट कर पा रहे हैं अपने गोल को बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल रह रहे हैं और अपने बिजनेस को डिफेंड कर पा रहे हैं। तो इसमें मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आ जाता है, विच इज आल्सो वेरी रिलेवेंट इन दीज टेक्नोलॉजी टाइम्स, कि हम सबके मन में विचार रहता है कि भाई सिर्फ टैक्स से भी लोगों के लिए बिजनेस है या नहीं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। तो आपके मन में अगर विश्वास है कि आप ये बिजनेस कर ले जाओगे इनोवेट करके या लर्न करके, तो आप ये बिजनेस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन लर्न टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। तो निराश नहीं होना है, पराजय नहीं होनी है, मन में नहीं हारना है, जीतना ही है। So thank you Ashish ji for blessing us with this information and the Kabirdas Doha. I hope ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारे पार्टिसिपेंट समझ पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का जो बैरियर है, कॉमन जिसको हम पर्सन कह रहे हैं और जिसको टेक सेवी पर्सन कह रहे हैं, ये शायद एक मिथ ही है जो कि हमें दूर रख रहा है टेक्नोलॉजी से या उसके अडॉप्शन से। तो अडॉप्शन के बाद हम सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विवेक जी, आई थिंक आप तो बहुत अच्छे से क्लोजली काम कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ में और आप हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते आ रहे हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल स्मॉल बिजनेसेस के लिए कैसे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। विवेक जी, कैन यू अनम्यूट प्लीज? या जितिन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्मॉल बिजनेस। आज से 10 साल पहले शायद आप हमें भी कह सकते हैं कि हम स्मॉल बिजनेस थे, है ना। वी स्टार्टेड विद 1 ऑफिस और आज 50 ऑफिसेज है। तो उसके बीच में जो गैप हमने फिलफिल किया, दैट इज टेक्नोलॉजी। जब हमने टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की, टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने के बाद हमारी 1 to 50th ब्रांच ओपन हो गई। तो जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर वो छोटी छोटी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना चालू कर दें, तो उनके बिजनेस में इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनका कस्टमर एक्विजिशन स्टार्ट हो जाते हैं फास्टर लेवल पे, उनकी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है फास्टर लेवल पे।
तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी विद तो स्मॉल विवेक बिजनेस। जी, इसमें जो कंपनीज ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी हैं या जो उनके टूल्स आ चुके हैं, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री में हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और है, हो सकता है कि एविएशन में कुछ और हो सकता है कि इवेंट मैनेजमेंट में कुछ और हो, एजुकेशन में कुछ और हो। तो जो भी स्मॉल बिजनेसेस आ रहे हैं, तो वो जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी और डीलर, तो वहां कहीं उनको आई थिंक ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते हैं उस टेक्नोलॉजी को, डिसिप्लिन होके, और शॉर्ट पीरियड में एजाइल भी हो सकते हैं उसके बाद। हाँ, ये जितिन थोड़ा सा आपने बहुत राइटली यू हैव सेड कि जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि कई लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो मैक्सिमम अगर इंडिविजुअल लेवल पे करें तो ज़्यादा ज़्यादा 1 2 3 डील पर मंथ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 3। बट वंस दे गेट अटैच विद अस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ दे टेक आवर फ्रेंचाइजी, so they might do 10 or 15 deals per month because हमारा टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय करके उनको देते हैं अपनी फ्रेंचाइजी को, तो उससे उनका कस्टमर बेस बढ़ता है, प्लस कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी के टूल यूज करते हुए ज़्यादा कन्वीनियंस क्रिएट करता है। तो इस पार्टनरशिप में इसके एडवांटेजेस मिलते हैं, जो हमारी लर्निंग रही है 10 15 साल में, वो हम पास ऑन करते हैं अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को टेक्नोलॉजी का। थैंक यू विवेक जी। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन लीड टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, और वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी है, और जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, वो भी एक नया वर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग हैंड्स विद द टेक एनेबल्ड कंपनीज। आई थिंक दिस इज द आउटकम फॉर दिस सेशन। सुमित जी, आप बताना चाहेंगे कुछ कि हम जो ये सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल की बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस की, तो कैन दिस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप कैन रियली प्ले अ वाइटल रोल? Yeah, you see, basically, if we say about the technology, how it's gonna help. See, basically, if I'll say that lesser manpower will be utilized in future. Okay, so being an entrepreneur, you should always focus in less manpower so that you can save a lot of cost and a lot of error. A human-based error can be, removed from this part. So, because of the help of this thing, because now I'm running multiple institute in different corners of India, I don't have to be, practically there. I can go online and I can watch every activity which is happening over there. Even like every second, I keep on getting the buzz as a SMS or alert in my apps that what is going on over there. So the technology is the future. So in future, like if any entrepreneurs are starting their business, they should relate. They should put everything on technology so that they don't have to be, depend on any manpower. Suppose if someone is not there in the office, who will open the office nowadays? Something like if it's like automated, you can sit at home office like home and you can open the office. So that's a technology is gonna That is help. home automation, yes. Yes, so that's the future, and I think everyone should start focusing on automation. And it's something like nowadays technology is something, if you want to, you just give a phone to a person opening an app, and if they spend 1 hour time on that, he will become expert on that particular app. So no one have to be expert, particularly in any software and all. It makes sense like you give some time to particular software. That's it. थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर सर। आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है एज अ लेमैन, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो देयर आर टू थिंग्स। वन इज टेक्नोलॉजी वो खुद से इनोवेट करे टू बिकम अ टेक एनेबल्ड बिजनेस, जैसा गौरव सर ने बताया शुरू में, या फिर वो अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करे, या फिर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करे इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी ले ले किसी की। तो वो अपने जो बिजनेसेस ऑलरेडी रन कर रहा है, अगर वो एसएमई है, तो वो साथ में इसको ऐड ऑन करके दे कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। और वो सस्टेनेबल, और जो एरर्स की बात करिए, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि जो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये इतने सारे जो फैक्टर्स हैं, आई होप दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। एंड इनफैक्ट जो हमारा एक वाइटल सेक्टर रहता है, जो मैं गौतम सर से हमेशा बात करता रहता हूँ, कि जो एग्रीकल्चर जो ये फील्ड है, उसके अंदर भी सर हम ये सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ला पाएंगे बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, गौतम सर? Yes, 100%. It is sure that we can improve with the intervention of technology, we can get the sustainability. क्योंकि इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। अभी देखिए काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं नीचे के लेवल पे, लोगों को डिमांड और सप्लाई में। आप एक बात कर रहा हूँ कि अब जो ग्रोअर्स हैं, चाहे वो कॉमर्शियल ग्रोअर्स हों, चाहे कॉर्पोरेट हों, चाहे बड़े फार्मर्स हों, दे हैव अंडरस्टूड द व्हाट इज द डिमांड एट व्हाट टाइम।
जब उनको ये पता लगता है कि इस टाइम पे इस चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, सो दे आर अलाइनिंग देयर क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन। तो वो जो सूचना मिल रही है कि हाँ इस टाइम पे इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड घट रही है या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। तो यदि वो स्टे रिलेवेंट वाली पोजीशन नहीं रहेगी तो वो कहीं ना कहीं वो पीछे पड़ जाएंगे, उनके प्रोडक्ट का प्राइस उनको ढंग से नहीं मिलेगा या कहीं ना कहीं लॉस करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए एग्री बिजनेस में भी, चाहे फूड में हो या प्रोडक्शन में हो, चाहे लॉजिस्टिक्स में हो, लॉजिस्टिक्स में भी एप्लीकेबल है। यदि उनको ये सेंस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे सप्लाईज कम हो रही है, इस मंडी में या इस पर्टिकुलर प्लेस डिस्ट्रिक्ट में सप्लाईज गैप आ रहा है, तो एक प्रोड्यूसर या एक लॉजिस्टिक प्लेयर वो अपना सप्लाईज उस एरिया में बढ़ा सकता है। So sustainability is there everywhere in agri and food sector with the use of technology. तो आई थिंक आई मीन एग्री बिजनेस भी अब बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रन हो सकता। नहीं बोले तो आई मीन द एफिशिएंसी विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। तो गौरव सर, आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। आपने स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप से, एडवांटेजेस की बात करी, हमने ये भी बात किया जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है लेकिन कोई पूछता नहीं है कि भाई मैं नॉर्मल आदमी हूँ, क्योंकि कोई आदमी अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता। तो एक हम ये बात कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है उन लोगों के लिए भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंड बाय यूजिंग इट हम रीच की बात कर रहे हैं, रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं, हम लोग एजाइल की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन, स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सर अगर हम इसको समराइज करें तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने एंटरप्रेन्योर्स को कि जब हम वो बिजनेस स्टार्ट करने जाएं तो क्या वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें लोगों के साथ, क्या वो किसी तरह का टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, इनोवेशन हो चुका है, उसको लीवरेज करें साथ में, या वो अपना एक रिसर्च R&D खोल दें एंड देन दे कैन स्टार्ट टेक एनेबल्ड बिजनेस। तो व्हाट इज द टिप्स फॉर दिस न्यू एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज यही चैलेंज है और इस चैलेंज को मिटाने के लिए हम बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पकड़ते हैं जो कि लोग शायद डिस्कस नहीं कर पाते किसी से, और जिसके कारण क्या होता है बिजनेस में फेलियर आना चालू हो जाता है, और जब वो फेलियर पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए ये मैं जानना चाहूंगा सर, कुछ टिप्स दें आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को कैसे बढ़ाएं, उस डोमेन में कैसे अपने आप को इंक्रीज करें। श्योर जितेंद्र। सो सबसे पहली चीज, जब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, जो चीजें मैंने बोली वो मैं समराइज कर रहा हूँ। पहली चीज है घबराना और डरना नहीं है टेक्नोलॉजी से। डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह है, हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, आपकी थिंकिंग लॉजिकल होनी चाहिए कि आप उस टेक्नोलॉजी से क्या करना चाहते हैं, वो थिंकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको हर तरह का टूल अवेलेबल हो पाएगा और हर तरह के टूल में आप उसको यूज भी कर पाएंगे। तो ये तो आपकी सेकंड चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई, अपने बिजनेस को प्रोसेसेस में स्प्लिट करके सोचें और टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है प्रोसेस वाइज सोचें। जब आप पूरा एक सिंगल ब्लॉक में सोचते हैं तो माइंड कभी कभी काम नहीं कर पाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, प्रोसेसेस में बांटें और टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ें। इससे आपकी टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन जो है वो तेजी से होगी और आप उसको जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। स्टे रेलेवेंट, मैंने जैसे बताया, जब तक आप रेलेवेंट हैं मार्केट में तभी तक आपका बिजनेस है। तो स्टे रेलेवेंट, उसके लिए आपको अपने आप को स्किल करना है, फिर आपको अपने आप को रीस्किल करना है और फिर अपने आप को अपस्किल करना है। ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं, स्किल, रीस्किल, अपस्किल। इसी से आप रेलेवेंट रह पाएंगे मार्केट में। अब रही बात कि बिजनेसेस के, ये तो हो गए आपके टिप्स कि आपको टेक्नोलॉजी को कैसे करना है। करेक्ट सर। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेसेस देखते हैं, कोई हम लोग इसके अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल्स देखते हैं जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी टेस्टेड है, तो हमें सिर्फ सीखने की बात रह जाती है। ट्रैवल एजेंसी का मेरे को हमेशा विवेक का एग्जांपल याद आता है कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू किया, सबसे पहला काम किया ऑफिस खोलने का। अगर उस वक्त विवेक ने सोचा होता कि मैं भी मेक माई ट्रिप की तरह एक पोर्टल बनाता हूँ ट्रैवल एजेंसी का, तो आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ट्रैवल बिजनेस में होते। तो टेक्नोलॉजी को लाना और टेक्नोलॉजी को सही टाइम पे सोचना ही बहुत बड़ी रेलेवेंट चीज है। तो आपने सर जो बहुत अच्छी बात कही, एक लॉजिकल जो बात है कि लॉजिकल एंड जो प्रोसेसेस को थोड़ा सा थिन डाउन करना है कि भैया एक साथ मत सोचने बैठो, टेक योर टाइम एंड देन आप अडॉप्शन करें, स्टे रेलेवेंट रहें, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, कंपनीज को देखें।
So I think these are the wonderful tips for our participants. I think they will be getting lot of benefit today. तो रमन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये टिप्स आपसे भी जानना चाहूंगा, बिकॉज आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं बहुत अच्छे से। आपने भी पीछे रन किए हैं 50 फ्रेंचाइजीज और पिछले 1 महीने में आपने 5 और नए फ्रेंचाइजीज जोड़े हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत रेलेवेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। विवेक जी। जितिन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप आपका जो भी बिजनेस हो, आप किसी भी XYZ बिजनेस कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मैं अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे हो, टेक्नोलॉजी टूल यूज कर रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी टूल आपके बिजनेस में रेलेवेंट है कि नहीं है। मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी टूल यूज करता हूँ दैट इज अ यूट्यूब चैनल, not a Facebook, because Facebook is basically for the more of happiness kind of thing. People share photos and they feel happy. उसमें सीरियस लोग नहीं आते हैं जल्दी। तो मेरे लिए वो रेलेवेंट टूल नहीं हो सकता है फेसबुक। मेरे लिए यूट्यूब रेलेवेंट टूल है, क्योंकि ये वीडियोस बनते हैं, वो यूट्यूब पे जाते हैं, लोग उसको देखते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करो अपने बिजनेस को लेके कि रेलेवेंट है कि नहीं है। रेलेवेंसी कहाँ पे आएगी, रेलेवेंसी कहाँ पे आएगी। रेलेवेंसी। सेकंड, अगर आप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हो और अगर आपकी खुद की, अगर आपको टेक्नोलॉजी बनानी नहीं आती, बिकॉज देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी टूल यूज करना और टेक्नोलॉजी बनाना ठीक है, ठीक है। मैं भी कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का बंदा नहीं हूँ, मेरा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप अपनी टीम में टेक्नोलॉजी के बंदे को ले सकते हो जो आपको हेल्प करे बिजनेस बिल्ड करने में, टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक हमने अपने बिजनेस में, हमारा एक टेक को फाउंडर है भानु है, और भी हमारे को वर्कर्स हैं साथ में जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, दे हेल्प अस इन डिप्लॉइंग एक बात टेक्नोलॉजी। मेरे को ये बड़ी सवाल अभी दिमाग में आया है कि आपने बोला कि भी मैं टेक्नोलॉजी बनाने बैठ जाऊं, लेकिन सपोज मेरे पास में 10 ही लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, तो मैं कहाँ से उसको R&D के लिए जाऊंगा। आप तो बड़े बन चुके हैं तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए अगर हम बात करें तो क्या मेरे लिए ये वाइबल सॉल्यूशन होगा कि मैं टेक्नोलॉजी बनाऊं या मैं यूज करूं, नहीं, या मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करूं। हाँ, आप यूज कर सकते हैं, बट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमारे साथ भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, ऐसा नहीं है, और स्टिल चैलेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओवर द टाइम अपग्रेड करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो टेक्नोलॉजी बना दी दैट इज सस्टेनेबल फॉर 10 ईयर्स। टेक्नोलॉजी आज मैंने बनाई, 3 महीने में वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, फिर मुझे नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लो। इस हमारे साथ में भी इनकेस हमसे जो फ्रेंचाइजी लेने आते हैं, दैट इज द मेन रीजन कि वो हमारी टेक्नोलॉजी देख के लेने आते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमने टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की एंड देन 20-25 ब्रांचेस हुए, तो हमारे एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती थी। दे ऑफर्ड अस कि हम आपकी कंपनी को खरीद लेते हैं क्योंकि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, है ना। तो आप सोचो, वो हमसे बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब हमसे आई थिंक आप कह सकते हो 100x बड़ी कंपनी होगी। तो उनको हमें ऑफर किया कि हम आपकी कंपनी को खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इवन आप जो जितेंद्र कह रहे हो 10 लाख रुपए, उनके पास तो बहुत पैसे रहते हैं, मतलब दे हैव मनी इन करोड्स। इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी। आपका विजन क्या है टेक्नोलॉजी को लेके, आपका जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो वो रिलेवेंस है कि नहीं आपके बिजनेस के लिए, वो टेक्नोलॉजी फिर अपग्रेड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इवन आई नो कि फ्लिपकार्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, बट मैं बना नहीं सकता, इवन पैसे होने के बाद भी नहीं बना सकता, क्योंकि जो विजन है उसके फाउंडर का, उसके ई कॉमर्स बिजनेस के रिलेवेंस है, वो ही नोज दैट बेसिक्स ऑफ दैट बिजनेस। इसलिए मेरे बिजनेस में भी कई लोग टेक्नोलॉजी यूज किए बट बना नहीं पाए, अपग्रेड नहीं कर पाए, तो फेल हो गए। इसलिए हमारे पास में जो फ्रेंचाइजी हमसे लेने आते हैं, वो बेसिक रीजन यही होता है, टेक्नोलॉजी देख के लेने आते हैं हमसे। तो सर ये क्या टिप्स देना चाहेंगे 2-3 पॉइंट में, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो, फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डोमेन। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी अगर नहीं बना सकते तो आप किसी को आउटसोर्स कर दीजिए, प्लस कंटिन्यूअसली इसको अपग्रेड करते रहिए, है ना, एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग मनी इन दैट टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस रिलेवेंस टूल्स आप आइडेंटिफाई करें टेक्नोलॉजी टूल के कि आपके बिजनेस के लिए
वायबल है कि नहीं है. So दैट these are मीन्स two आउटसोर्स करें, अपग्रेड करें, रेलेवेंस रहें, प्रोसेसेस को लिखें. हाँ. ठीक है विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है आज, एंड आई होप कि ये रेलेवेंसी पे बहुत आज डिस्कशन हुआ है. गौरव सर ने स्टार्टिंग से ही बताया, रेलेवेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है. डॉक्टर सुमित, few tips from your side. See, basically, at this COVID situation, I should say, don't get into R&D. This is not the right time. It's better to go for franchisee, because nowadays, if you're taking a franchisee, they are equipped with all the technologies. You don't have to spend a huge money. Suppose you want to launch some app, you have to spend 10 to 15 lakh rupees for app. So if you're taking a franchisee, you're getting everything ready-made. You don't have to spend anything. Just take a building, make an office, and sit and start making money. You know, and but in that time, spend your energy in more, technologies and all. You do research and give this idea to this franchisee team, and let them spend and let them invest and get you the things done. Thank That you, will be a Sumit ji. I think better you are idea. very much bullish on franchisee. Franchisee Yes, is the best option for the new entrepreneurs. we never got an As per you. opportunity when we started business. We wanted to do that thing, but now we want to give this opportunity to other players so that they can make instant money. They don't have to wait for a long, long time. Thank you, Sumit sir. Ashish ji, few tips from your side. जी देखिए, एज द बिजनेस इकोसिस्टम इज चेंजिंग. ये जो हमारी दुनिया है बहुत तेजी से चेंज हो रही है. हमने शुरुआत में भी मैंने कुछ डाटा बताया था लोगों सबको कि दुनिया ऑलरेडी बहुत तेजी से चेंज हो रही है. तो हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल 10 इयर्स प्लस बिजनेस कर लिया है या जॉब कर लिया, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लर्न करी हैं. सो नाउ एज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो जो सबसे पहला टिप है मेरे लिए, मेरे पास लोगों के लिए, वो है कि आप अनलर्न करें. आपने जो चीजें ऑलरेडी लर्न कर ली हैं कि भाई बोर्ड लगाना होता है, कस्टमर इस तरीके से आता है, दैट ऑल इज चेंजिंग. आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करिए, और जो आपने ऑलरेडी जो चीजें लर्न करी हैं विच इज नॉट गिविंग रिजल्ट्स राइट नाउ, क्योंकि लोगों के बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो रिजल्ट नहीं दे रही है. जस्ट अनलर्न इट, छोड़ दीजिए. somehow it is very difficult task. Or the second thing, after unlearning, learn new things. So learning new things भी एक बड़ा contextual चीज है कि जैसे जब हम MBA करने गए तो हमने सब कुछ पढ़ा, चाहे वो कभी जरूरत थी या नहीं थी. उन्होंने कहा कि यार आप ऑपरेशन मैनेजमेंट भी पढ़ो, आप सिक्स सिग्मा भी पढ़ो, आप ABS सॉफ्टवेयर चलाना भी सीखो. तो ये स्वरम भी तो याद करेगी हमने. जी, वो कभी कभी यूज हो जाती है. So that all thing is not necessary. अभी जो आपको लर्न करना है वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने हैं. तो आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर रखिए और उनके सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से ढूंढने की कोशिश करिए. ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन हो जाए, पूरा मत लर्न करिए. सो दैट इज द सेकंड थिंग कि आपको स्पेसिफिक लर्निंग चाहिए. थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूट फास्ट. जो चीज आपने लर्न करी है उसे एग्जीक्यूट करने में टाइम मत लगाइए, क्योंकि अगर वो गलत होगी तो एजाइल फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा यूज यही है कि आप उसे जल्दी से दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हो नई चीज लर्न करके. इट विल नॉट टेक यू 1 ईयर कि आपने एक दीवार बनवा दी, अब फिर आपको पूरे मिस्त्री बुलाने पड़ेंगे, वो दीवार टूटेगी, उस दीवार को टेढ़ा किया जाएगा. नहीं, इट इज मच फास्टर देन दैट. आप तुरंत जैसे जूम छोड़ करके वी कैन स्टार्ट यूटिलाइजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर in a single day just by learning. So this third thing is very important. Execute fast. If you have to fail fast, relearn and re-execute. The fourth thing is put your focus on marketing. मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ उन्हें एक पेपर जरूर पढ़ने के लिए कहता हूँ कि रेगिस मैकिना रोड ए वेरी नाइस पेपर, मार्केटिंग मायोपिया. नेक्स्ट टाइम कहीं मार्केटिंग का सेशन होगा तो उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. लोग मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते हैं और प्रोसेसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं. फॉर ए स्मॉल बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपकी मार्केटिंग सेट होनी चाहिए और सेल्स होनी चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए. रेस्ट ऑल थिंग कैन बी डन लेटर ऑन. सब कुछ हो जाएगा, आप सेल्स शुरू करिए. So after this fourth thing, fifth thing is collaboration. जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी, गौतम सर ने बताया, गौर सर ने बताया, विवेक ने बोला, डॉक्टर सुमित ने भी बोला कि आपको R&D का, देखिए स्मॉल बिजनेस में R&D का बहुत बजट नहीं होता है और फॉर इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा R&D करनी संभव भी नहीं है. सो आप लोग कोलैबोरेट करें, किसी की फ्रेंचाइजी लें, उसकी पूरी टीम यूज करें, उसने जो 4-5 साल में जो डेवलप किया है सिस्टम, उस सिस्टम को यूज करें
और अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाए। तो आज हमने बहुत टिप्स मिले हैं हमारे को, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम गौरव सर, स्किल की बात हुई, रीस्किल, अपस्किल, लॉजिकल, प्रोसेस, एडॉप्शंस, अपग्रेडेशन की बहुत अच्छी बात हुई कि एक रेलेवेंस के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा और एजाइल रहना पड़ेगा। देन आपने बताया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन आल्सो प्ले अ वाइटल रोल व्हाइल अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी। गौतम सर, आपकी तरफ से हमें टिप्स चाहिए कि जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है एंड हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। तो गौतम सर, आपकी क्या टिप्स होंगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए? वेरी शॉर्ट, सो दैट विल समराइज दिस सेशन एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। सर अनम्यूट करिए प्लीज। एक हमारे जो एग्री बिजनेस सेक्टर में एक बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के गैप जो होते हैं वो बहुत ही फास्टर और क्विकर वे में होते हैं। तो वी यूज ए वर्ड कि स्टे इन्फॉर्म्ड। यदि आपको मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपको स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी। तो हम लोग कॉमनली वर्ड यूज करते हैं स्टे इन्फॉर्म्ड इन एग्री बिजनेस सेक्टर, क्योंकि डिमांड सप्लाई की गैप वो बहुत ज्यादा कब कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वर्ड तो स्ट्रेटजी ने बोला कि दो बातें भी यहाँ बहुत लागू होती हैं इनमें किसी के साथ। तो यही है, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड बी कोलैबोरेटिव विद योर प्रोबेबल पार्टनर्स, उनके साथ। ये दो मूल मंत्र है हमारे एग्री बिजनेस सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी के लिए। थैंक यू गौतम सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। स्टे इन्फॉर्म जो आपने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग स्टे अपडेट रह सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, सबके साथ। तो लेट्स एंड अप दिस सेशन बाय गिविंग आई मीन देयर इज अ स्मॉल वीडियो फॉर द बुके फ्रेंचाइज। लास्टली काफी लोगों ने बात की थी कि बुके फ्रेंचाइजी के ऊपर कुछ राइटअप दीजिए। तो बाय परमिशन ऑफ ऑल द पैनलिस्ट आई जस्ट प्ले अ वीडियो एंड देन विल क्लोज दिस सेशन। जितेंद्र प्ले नहीं हो पा रहा है, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है। It's not playing. I think you don't know about it. नहीं चल पा रहा जितेंद्र। So thanks a lot for all the panelists for joining this session, and I hope this technology entrepreneurship is going to be benefit for all the entrepreneurs. और बुके फ्रेंचाइजी के बारे में कोई अगर और जानना चाहे तो दे कैन राइट टू अस, वी विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व देयर क्वेरीज। थैंक यू गौरव सर, गौतम सर, सुमित जी, विवेक सर, आशीष जी। We'll be joining in the next session with a new topic, and we'll be able to make more entrepreneurs by this all webinars. Thank you. Thank you. थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।